Hello, my dear children. You're most welcome in class 11 accountancy. Just me, R.R. Tripathi from LPM Public School. We are on the topic of financial statement with adjustment. Yesterday it was explained about the adjustment, just how the transactions are adjusted in financial statement, whether they are omitted or wrongly posted. Through the practical question number 1, how the trading account, profit and loss account as well as balance sheet is prepared, I would like to tell. First, we have to bifurcate all the heads given in the trial balance and below the information, additional information given regarding the adjustment. So, go through the questions, draw the format of trading account and how the adjustments are adjusted in financial statement. Keep your eyes at the green board. So, now you can see the following are the balances extracted from the books of Raghunath Ji as on 31st March 2019. From these balances, prepare his trading and profit and loss account and balance sheet as at that date. So, first we have to draw the trading account. Now you can see over here, trading account, question number first. Trading account. Trading account. Now you can see half of the things, half of the blackboard on the board. This way you can see trading account. Trading account. Particulars. Amount. Particulars. Amount. This one is the debit side and other is the credit side, right hand side. And go through the questions. Just we have to sort out the items that is given related to trading account. Opening stock in debit column, just we can write this way to opening stock. Opening stock, that is 12,000. Opening stock, the goods are remain unsold at the end of previous year, that will become the next year opening stock. So it related to the trading account. Next, to purchase. To purchase, that is given. To purchase, whether the purchase return given. Yes, purchase return also given in credit column. You can see. So purchase will be written inside of the particular. Purchase 40,000. 40,000 less purchase return, that is given in
क्रेडिट कॉलम 4000 माइनस 4000, यू कैन सी 36,000। बेटा हिंदी में भी आप देखते रहे कि हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वह 12,000 का है, 40,000 का पूरे साल का परचेज है, जिसमें से 4,000 का सामान वापस आ गया है। अगला एक्सपेंस बाय सेल्स, सेल्स भी है तो बाय सेल्स, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। बाय सेल्स क्रेडिट कॉलम में होगा 86,000। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस रिटर्न। आप देखेंगे कि आपको इस सेल से माइनस कर दिया गया, कितना है सेल्स रिटर्न 6,000 माइनस 6,000 सेल्स रिटर्न हो गया, यू कैन राइट 80,000 आउटसाइड ऑफ द कॉलम। सेल्स रिटर्न बिल्डिंग डेटर सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस वेजेस, दिस वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू वेजेस, टू वेजेस। व्हाट्स द अमाउंट गिवन, वेजेस गिवन 10,000। अब हमें क्या देखना है, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़े, कहीं वेजेज पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखो एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक 16,000, वेजेस ₹2,000 एंड सैलरी 1,200 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बट नॉट येट पेड। तो क्या करेंगे, वेजेस को इन साइड में लिखेंगे 10,000 एट आउटस्टैंडिंग। अब उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस जो अभी देना बाकी है, बेटा खर्च इसी साल का है जिसे देना बाकी है, प्लस 2,000 आपका हो गया 12,000। उसके बाद परचेज रिटर्न, इंटरेस्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, मशीनरी, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज टू कैरेज ऑन परचेज, माल मंगाने या माल बनाने का खर्च जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होता है। कैरेज ऑन परचेज के ऊपर जो हमने खर्च किया है वो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम होगा। अब कैरेज ऑन परचेज, व्हाट्स द अमाउंट ऑफ कैरेज ऑन परचेज 700, कैरेज ऑन परचेज 700। अब इस पर भी देख लीजिएगा, कहीं भी प्रीपेड इंश्योरेंस है, रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%, प्रीपेड इंश्योरेंस 200। कुछ नहीं है तो सीधे सीधे आप अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे परचेज ऑन कैरेज ऑन परचेज 700। अब कोई आइटम बचता है केवल क्लोजिंग स्टॉक, आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस दिया गया है इसके ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दैट इज गिवन 16,000, 16,000। अब आप इसे टोटल करेंगे, टोटल करेंगे और ये देखेंगे कि यदि क्रेडिट साइड वाला एक्सीड करेगा तो इसका मतलब है आपका प्रॉफिट हुआ, यदि डेबिट साइड वाला एक्सीड करेगा तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ग्रॉस लॉस। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 86,000, 96,000 टोटल होगा, 96,000, यहां भी आप लिख देंगे 96,000। अब उसके बाद इस डिफरेंस को 48 एंड 60,700 माइनस कर दें 96,000 में से,
60,700 equal to 00353. That will be the gross profit to gross profit to gross profit 35,300. एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा एक ही थी जो वेजेज से संबंधित थी। आप देखेंगे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। This way the trading account is prepared. Now come to the point of profit and loss account. Just now you can draw the figure, format of profit and loss account. From here, yes, profit and loss account. Now you can see profit and loss account. Profit and loss account for the year ending, just you can write this way. Whatever the information given in the question, profit and loss account, whatever the GP, gross profit. Now this one is the particulars amount, this one is the debit and this one is the credit. Now see over here, by gross profit, BD, by gross profit, whatever the gross profit earned by the organization, that it has been calculated 35,300. Now come to the information given in the questions. Expenses, indirect expenses. First, discount that is in credit column. Discount is given in credit column, so we can write over here by discount received. Whatever the items given in credit in trial balance, whether they related to the income recorded in credit side of the profit and loss account. So in credit column, whatever the amount given, 400 discount. Next, sales return recorded building debtors, salaries, 2 salaries. अब आप देखेंगे सैलरीज के ऊपर आपका वो भी है, एडजस्टमेंट भी है इंफॉर्मेशन में। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1200 है, तो सैलरीज आपने लिखा है यहाँ पर 2400 ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। एड आउटस्टैंडिंग आपका है कितना? आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1200, आपका हो गया 3600 आउटसाइड कॉलम में। 2400 ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, 1200 आपका आउटस्टैंडिंग है, एडजस्टमेंट में दिया गया है, तो ऐड कर दिया गया है। अब सैलरी के बाद आ जाएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। इस पर कोई आप इंफॉर्मेशन में देख लीजिए, एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा का सीधा आप कॉलम में लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 1200। फिर उसके बाद वेजेस आप रिकॉर्ड कर चुके। इंटरेस्ट
क्रेडिट कॉलम में दिया गया है तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपने रिसीव किया है, इनकम है आपका बाय इंटरेस्ट। कितना है बेटा 800। जस्ट यू कैन राइट इन 800 इन क्रेडिट कॉलम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू traveling expenses दिया गया है आपका 400 यात्रा व्यय खर्च है। उसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। इस पर देखेंगे रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ इज आउटस्टैंडिंग 500 पर मंथ। वेजेस सैलरी प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज प्रीपेड है, मतलब नेक्स्ट ईयर का एडवांस दिया गया है, तो इसे कंसर्न एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं जैसा कि बताया गया है आपका 800 है। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस 200 इक्वल टू 600 आउटसाइड। आप देखेंगे इंश्योरेंस 800 रुपए दिया गया है जिसमें 200 रुपए प्रीपेड है आपका, तो उसे माइनस कर देंगे। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द इंश्योरेंस गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट मशीनरी कैरेज ऑन परचेज कमीशन टू कमीशन कोई इस पर ये नहीं है आउटस्टैंडिंग, इसलिए हम कमीशन को डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखेंगे 400। Cash in hand, this one is the assets, rent and taxes to rent and taxes। आप देखेंगे इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इंफॉर्मेशन दिया गया है रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने का किराया बाकी है 500 रुपए के हिसाब से, तो 5 2 जा 10 1000 रुपीज 500 इंटू 2 2 महीने का किराया बाकी है, तो ये ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग है, उसी साल का खर्च है 1800 है। ट्रायल बैलेंस में आपका रेंट एंड टैक्सेस एट आउटस्टैंडिंग हो गया आपका कितना है 1000। आप जोड़ लेंगे तो 2800 होगा। अब देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कोई छूटा तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस सैलरी भी हो गया, रेंट फॉर 2 months भी होगा। डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। टू डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है हमारा वैल्यू कम हो रहा है मशीन का, तो बेटा ये टू डेप्रिसिएशन ये आ गया आपका बिल्डिंग। बिल्डिंग पर 5% है, तो बिल्डिंग आप इसमें ढूंढेंगे क्या अमाउंट है बिल्डिंग का 50,000 का 5% होगा 2500। और उसके बाद मशीनरी बाय 10%, मशीनरी का आप ढूंढेंगे, मशीनरी 20,000 है, 10% होगा 2000। मशीनरी 2000।
अब इसको जोड़ देंगे तो आएगा 4500। अब कोई आइटम आपका बच नहीं रहा है, लगभग सभी आपने जो एक्सपेंसेस थे, जो आयगत खर्च या इनकम है, उसे आपने कर दिया। अब इसे आप टोटल करेंगे तो देखेंगे कि आपका प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। एक दोनों तरफ का टोटल अलग अलग करेंगे आपका, तो ये हो गया 0 0 36,500. You can write over here 36,500. And total of the debit column. डेबिट कॉलम के सारे एक्सपेंस को जोड़ करके इनकम से माइनस करेंगे, वही आपका नेट प्रॉफिट होगा। टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट फॉर दिस ईयर, दैट विल बी, आप टोटल करके चेक करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट 23,000 आएगा। 23,000, दैट विल बी द नेट प्रॉफिट। अब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का कॉलम हम आपको यहां पर इसको हम इरेज करते हैं और यहां पर देखेंगे बैलेंस शीट का अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है आपका, ऐसे बनाते जाएंगे। अब उसके बाद बैलेंस शीट देखें आप। ये डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स होता है। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, आप बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ये होगा आपका लायबिलिटीज, ये हो गया आपका लायबिलिटीज। देखें, नाउ सी ओवर हियर लायबिलिटीज एंड दिस वन इज द एसेट्स। First you have to write capital. You can see over here capital